I'm back. So, as mentioned, Sherlock Holmes asked him that he'll give him a new ghost, so that man was happy. So, Sherlock Holmes was here clear with the point that the man. Now, I forgot to share this one more thing with you. That is that Sherlock Holmes was more interested to find that how could he got this carbuncle, because 2 days before a Morcoras princess was carbuncle was stealed from a hotel. So Sherlock Holmes wanted to know that from where, how could this man get that blue carbuncle? Is he responsible behind stealing those carbuncles? So he asked him. So, but the Sherlock Holmes was now able to get that he is not responsible. So he thought that why shouldn't I ask this person that from where did he cause this goose? So Sherlock Holmes asked that man कि आपके पास goose कहाँ से आया? तो उसने कहा कि हमारी boss ने, basically the employee, the head of their office gave him as their Christmas gift a goose, and hat was his. So now he said that where is your who is your hotel's boss? So he just gave him the address and said कि आप वहाँ से जाके उनके बारे में पूछ लो. So he went there and he asked him that. So he went to the boss of the hotel. So he asked him that where did you got this goose from? So he said that I bought it from a market at the Breckenridge. So he said, okay, I'll go now there. So now Sherlock Holmes went to that shopper at the Breckenridge and he asked that owner of the shop that आपके पास ये goose कहाँ से आया? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें, तो पहले तो उसने कुछ देर तो पर उन्हें उसको ये एहसास नहीं दिलवाना था कि वो वहाँ उससे ये पूछने आया कि उसके पास एक गूस कहाँ से आया था. तो उन्होंने अपना सवाल, उसने बोला कि हमें गूस चाहिए. तो उसने कहा पर मेरे पास तो गूस है ही नहीं. तो उन्होंने कहा पर हमें तो गूस चाहिए. तो उन्होंने कहा कि तुम शर्लक होम्स ने कहा तुम हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले लो पर हमें गूस दे दो. तो उसने कहा जब मेरे पास है ही नहीं तो आपके एक्स्ट्रा पैसे तो किसी काम के ही नहीं है. So he said that okay, but your goose are very tasty. So the owner of the shop said, I know that. अब यहाँ पर Sherlock Holmes wanted, but he didn't wanted to make the shopkeeper realize that he had came to ask that from where did he got the goose, but he wanted to ask it that from where did he got the goose. So Sherlock Holmes and Watson planned a game. They said that let's first ask him that how did he got that goose. So he asked him that from where did you got the goose. So he said that why should I tell you, who are you to ask me this question. So he said that actually Dr. Watson, Sherlock Holmes said this, that Dr. Watson और मेरे बीच में ना शर्त लगी है. तुम बताओ कि ये कहते हैं कि ये जो गूस है वो टाउन से आया और मैं कहता हूँ कि ये गूस सिटी से आया. तो तुम ही बताओ कि कौन इस हम में से जीता है ये शर्त. तो शॉपकीपर ने कहा कि तुम जीते हो ये शर्त शर्लक होम्स को, क्योंकि ये जो है वो तो मैं ओकशॉट से लाया हूँ, मिसेस ओकशॉट से, जो कि सिटी में है. सो नाउ ही गॉट अ हिंट. All of a sudden, a second person came and he was also asking about the goose. that कि आपने दूसरा आदमी आया, उसने पूछा कि तुमने गूस किसको सेल किया था. तो उसने कहा कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं. फिर द शॉपकीपर वॉज वेरी इरिटेटेड कि मैं सबको क्यों बताऊं भाई कि मैं कहाँ से गूस लाया, मैं किसको बेच रहा हूँ, और मैं दिन भर में इतनी गूस बेचता हूँ. अब मैं एक एक का पता थोड़ी याद करके बैठा हूँ कि मैंने किसको कहाँ दे दिया गूस. तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, मेरे से मत पूछो. तो ही सेड कि चलो ठीक है. तो ही जस्ट दैट पर्सन वेंट फ्यू मीटर्स अवे. सो शर्लक होम्स ran behind that person. He said that he would surely help us to find some or the other clue. So I hope your interest is still there. Of course. So उसने सोचा कि ये हमारी मदद जरूर करेगा, क्योंकि इसको क्या है कि गूस कहाँ है. हम तो इसलिए आए क्योंकि हमें चोरी के बारे में पता चला, पर व्हाई हैज ही कम दिया. तो वहां उन्होंने वो गए और उन्होंने उससे उसका नाम पूछा, पर उसने अपना गलत नाम बताया. तो शर्लक होम्स ने कहा तुम मेरे से झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने अपना गलत नाम बताया, तुम मेरे को अपना सही नाम बताओ. तो फिर उसने अपना सही नाम बताया. उन्होंने कहा कि तुम मुझे पूरी स्टोरी बताओ कि तुम्हारे पास ये, तो वो उसको अपने घर लेकर गया.
शर्लक होम उसको अपने घर लेकर गया और उसने कहा कि मेरे पास ना एक गूस था जिसमें ये ब्लू कार्बंकल निकला। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं उसको कैसे ढूंढूं उसके ओनर को। तो जो था वो जो आदमी शर्लक होम्स के साथ आया था, उसने कहा कि ये कार्बंकल मेरा है। तो उसने कहा कैसे, ये तो मोरकोरा की प्रिंसेस का था। तो फाइनली अब फिर शर्लक होम्स ने कहा अब तुम्हारा गेम खत्म हो चुका है, मेरे को सब कुछ सच सच बता दो, अदरवाइज आई विल गो टू द पुलिस इंस्पेक्टर। सो ही सेड आई विल टेल यू एवरीथिंग बट प्लीज डोंट टेल एनीवन। सो ही सेड जल्दी बोलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So he said, okay, I'll tell you everything. Just give me some time. So what he did that उसने खुद बोला कि मैंने जो मोरकोरा की प्रिंसेस हमारी होटल में स्टे करने आई थी और उनकी जो एक असिस्टेंट थी, मैंने और उसने मिल के प्लान किया था कि हम वो चुरा लेंगे घूस हम, क्योंकि मोरकोरा की प्रिंसेस के पास कार्बंकल था जो कि उन्होंने घूस के अंदर डाल दिया था और ये बात सिर्फ उसके असिस्टेंट को पता थी और वो बात उस असिस्टेंट ने उस होटल के मैनेजर को बता दी। तो प्लम्बर को बुलाया था उन लोगों ने मोरकोरा की प्रिंसेस के रूम का पानी ठीक करने के लिए, और घूस चोरी कर ली और इल्जाम डाल दिया उस प्लम्बर पर और वो जेल में सड़ रहा था। तो और उसने कहा कि मैंने ये गूस मैं वहां से लेकर भाग गया था, पर मैं अपनी सिस्टर के घर गया जो कि ओकशॉट है, मैं उनके वहां गया था और उन्होंने मेरे को कहा था कि मेरे को अपने इस क्रिसमस पे वो मेरे को एक गूस गिफ्ट करेंगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यही गूस उनमें मिक्स कर दूं और सुबह उठकर मैं कह दूंगा कि हाँ ये गूस मेरा ही है और फिर इससे मैं पुलिस के इल्जाम से भी बच जाऊंगा, ताकि मैं कह दूंगा कि ये तो गूस मैंने अपनी बहन से लिया था, मैं नहीं जानता किसी कार्बंकल के बारे में। सो ही प्लान दिस, बट सुबह उसके उठने से पहले ही उसके सिस्टर ओकशॉट ने वो किसी को बेच दिया था, इसी वजह से उसका वो कार्बंकल किसी और के पास चला गया था जो उसने चुराया था। तो इस सेट देखो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया, पर अब प्लीज ये की बात तुम किसी को बताना मत। तो उसने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, पर तुम यहाँ से दफा हो जाओ, जस्ट शट आउट। सो he threw him out of his home. So he was thrown out, and the Sherlock Holmes planned that if this case would be disclosed, the plumber would surely be put out of the jail, and the reputation of this manager of the hotel won't be also spoiled. So this was the story. I hope it's clear to you. So last में क्या हुआ कि शर्लक होम्स ने उस केस को वहीं खत्म कर दिया बिना किसी को बताए, ताकि प्लम्बर को भी जेल से छोड़ दिया जाए और उसके भी रेपुटेशन को कोई मतलब whatever he did कोई बात नहीं, पर अब उसकी रेपुटेशन पे कोई चोट ना लगे, एंड ही इज स्टिल अ मैनेजर ऑफ द होटल। सो दिस वाज ऑल। थैंक यू सो मच. Don't forget to like, share and subscribe my channel if you are new.